Welcome to our new sessions about the forces, in which we covered the system of the forces. As we already know what is force. So force is basically the push and pull of a body or an object which tends to change the state of the motion or the state of rest. So here are the some collinear relation between the force system. Firstly, we go further, so we have understand what is the force system. Force system is basically a system in which different types of the forces may be external or maybe external or maybe internal. These forces will act on an object or a point in their spaces. So there are the two spaces here, that they are coplanar or non-coplanar. As we already know, there is the four plane by the quadrant: first quadrant, second quadrant, third quadrant, and the fourth quadrant. In coplanar, all the forces which is acted on a body or at a point, they are in the same plane. Whereas if the forces acted on a body or a point, if they are not in the same plane, then they are called as the non-coplanar. सो इनके जो रिलेशन होंगे वो हमारे कुछ फोर्सेस हमारे पास ऐसी होंगी जो कोलिनियर होंगी, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस अगर काम कर रही हैं वो सारी की सारी एक प्लेन में हैं, तो दे आर कॉल्ड द कोप्लेनर. पैरेलल फोर्सेस यानी कि हमारा सेम सेंस के अंदर हो सकती हैं और सेम सेंस के अंदर भी नहीं हो सकती हैं. जैसे कि ये दोनों जो हैं ये हमारी कहलाएंगी इन द सेम सेंस, यानी कि इनकी डायरेक्शन विल बी द सेम. और इफ द डायरेक्शंस आर not the same but parallel to each other, they are called the unlike forces. और सेम सेंस वाली को, यानी कि जिनकी डायरेक्शन सेम हो, उनको हम बोलते हैं लाइक फोर्सेस. So and next one is the congruent. As you already know what is the congruent, and second is the non-congruent. Similarly इसके अंदर नॉन कोप्लेनर के अंदर भी हमारे तीन पैरामीटर हैं: पैरेलल फोर्सेस, congruent forces and the non-congruent forces. Now let's start with their relationships. Okay, so first system is the coplanar congruent collinear force system. As we already know what do you understand by the coplanar? Coplanar means all the forces lie in the same plane. That is, all the forces will interact in the first quadrant, second quadrant, third quadrant, or maybe in the fourth quadrant. Congruent means they have the origin one. Collinear, all the forces lie in the same प्लेन, और द आप बोल सकते हो कि सेम एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस होगा. ठीक है, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फोर्स सिस्टम एंड इंक्लूड्स दोज फोर्सेस हुज वेक्टर लाइज इन द सेम स्ट्रेट line, as we see in the
figure. In figure A, the directions of all the forces will be in the same direction, and the force F1, F2 and F3 will lie in the same plane. Whereas in the figure B, we have seen that both the forces F1 and F2 have the same direction, but the directions of the force 3 will be in the opposite direction. बट आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इनका फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ लाइन जो है वो एक ही प्लेन में है और एक ही लाइन में है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट कोलिनियर फोर्स सिस्टम. दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है हमारा कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम. कौन सा है? कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम. इन दिस कि आपका कोप्लेनर है यानी कि सेम प्लेन होगा. आइदर ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट इन 2D. और यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी द सेम. एज वी कैन सी that F1, F2, F3, F4 and F5 are originated from the same point O. Non-parallel, that means all the forces will have some angle. They may be different, they may be equal. Okay, so the forces whose line of action passes through the common point, यहाँ पे common point आपका कौन सा है? O है, are called the congruent forces. In this system, line of action of all the forces meet at a point and have the different direction as you can see in the figure. हमारा तीसरा जो क्या कहते हैं सिस्टम है वो है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट पैरेलल फोर्स सिस्टम. जैसा कि हमें पता है कि कोप्लेनर है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ लाइन जो है वो सेम प्लेन के अंदर होंगे, आइदर इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ. नॉन कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होगा इनका डिफरेंट होगा एंड बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इन दिस सिस्टम लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ द फोर्स ऑफ लाइन लाइज इन द सेम प्लेन एंड आर पैरेलल टू ईच अदर बट मे हैव द डिफरेंट डायरेक्शन. सपोज करो कि ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो इस वाले सिस्टम के अंदर जैसे कि F1 एंड F2 जो हैं ये और F3 ये आपस में पैरेलल हैं, बट जहाँ पे डायरेक्शन की बात करी जाए तो डायरेक्शंस ऑफ द F1 एंड F2 विल बी द डिफरेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द F3. सो it comes under the category of the coplanar non-congruent parallel force system. that is यहाँ पर सेम तो प्लेन में है लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन इनका अलग अलग है और साथ के साथ जितनी भी फोर्स ऑफ लाइन आपकी सिस्टम में एक्ट कर रही है वो सारी की सारी आपस में पैरेलल हैं. फोर्थ सिस्टम जो है वो है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम. इसका मतलब ये है कि आपका जितनी प्लेन तो सेम होगा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में किसी एक के अंदर ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा होगा. यहाँ पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होगा फोर्सेस का वो अलग अलग होगा और ये जितने भी एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होंगी ये सारी की सारी आपस में नॉन पैरेलल होंगी. जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हो कि F1, F2, F3, F4 और F5 ये सारी की सारी ये हैफाजार्ड मैनर में है, किधर से भी कोई से भी आ जाए, बस इनके अंदर एक चीज़ ये है कि ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं.
फोर्थ और फिफ्थ टाइप्स के जो हैं कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम, यानी कि इस वाले सिस्टम के अंदर आपके जो फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस लाइन होंगी ये सेम प्लेन के अंदर होंगी और कॉन्ग्रुएंट होंगी। This system is evident where the line of action of the forces does not lie in the same plane but passes through the common point, यानी कि एक कॉमन पॉइंट से ये पास करके जाएंगी। सिक्स्थ वन इज द नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जितनी भी लाइन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस होंगी ये सारी की सारी हैजार्ड मैनर में होंगी। कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, कोई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, कोई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, कोई फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। तो बस now the next topic is the resultant and the components of the forces। resultant force हमारा कौन सा फोर्स कहलाएगा? resultant force is a single force which can be replaced two or more forces produce the same effect on the body as the two or more forces have। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फोर्सेस 1, F1, F2 और F3 या एंड सो ऑन है और ये किसी बॉडी को मूव करने के अंदर या उसको रोकने के लिए काम में आ रहे हैं टू कमिटेड द रेस्ट, तो जितनी फोर्सेस आपके बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी को वो या तो मूव कर सकें या उसको रेस्ट पोजीशन पे लेकर आ सकें, इन सारी फोर्सेस को काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास एक फोर्स ऐसी निकल कर आई जिसकी वजह से ये सारे के सारे काम हो सकते हैं जितना कि ये सारी की सारी फोर्सेस मिलकर कर रही थी। तो वो आपकी कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। लाइक ये अगर लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि 5 मजदूर मिलकर आपका एक गड्ढे को खोद रहे हैं और वहीं पर जब हमारी एक जेसीबी आ जाती है तो वो भी उसी गड्ढे को खोदती है। यहाँ पर आपके 5 आदमी लगकर एक गड्ढे को तैयार कर रहे थे, 5 अलग अलग फोर्सेस लग रही थी। वहीं पर उन सब का काम करने के लिए जो एक जेसीबी आई जो कि एक आदमी ऑपरेट कर रहा है, तो ये जो मशीन आप लेकर आए हो इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द 5 मैन्स। ठीक है, और इसी तरीके से आप दूसरी भी एग्जांपल्स ले सकते हो ना। तो बेसिकली आपका रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स हो गया जो कि आपका डिफरेंट फोर्सेस की आप सम बोल सकते हो या डिफरेंस बोल सकते हो, उनसे निकलकर आया हुआ होता है। यानी कि जितना काम आपका या जितना इम्पैक्ट जो ये सारे फोर्सेस डाल रहे थे किसी बॉडी के ऊपर, उतना ही इम्पैक्ट अगर एक सिंगल फोर्स डाल दे तो वो सिंगल फोर्स आपकी कहलाएगी रिजल्टिंग फोर्स। इज दैट क्लियर? साथ के साथ ये आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मैकेनिक्स भी है। तो इसके अंदर क्या है कि फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव the motion of a body in the directions of the forces and the distance traveled by the unit time depends upon the magnitudes of the forces। जैसा कि इससे पता चला कि क्या कहते हैं, हमारा जितना भी आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, यानी कि आप उसके ऊपर कितना फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। यानी कि 6 न्यूटन का कर रहे हो या 8 न्यूटन का कर रहे हो, और इसको काउंटरएक्ट करने के लिए आप सिंपली एक इन दोनों के सम का अगर हम देखें तो कितना आएगा 14। तो 14 न्यूटन का अगर आप एक ही लोड लगा देते हो तो ये दो फोर्सेस जो काम कर रही थी वो अब सिंगल ये फोर्स
काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस जो है बेसिकली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड। ऑल्सो फर्दर द टू फोर्सेस acting simultaneously on a particle along the direction inclined to each other can be replaced by a single force। तो जैसा कि हमने बोला कि अगर आपके बहुत सारी फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं रिजल्टिंग फोर्स। अब इसके अंदर एक आता है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस एंड द रिजॉल्व फोर्स एंड द रिजोल्यूट। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस हम उसको कहेंगे जिसके अंदर हम अपनी एक फोर्स को दो हिस्सों के अंदर या दो से ज़्यादा हिस्सों के अंदर तोड़ दें, तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। वहीं पे जिस फोर्स को ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं रिजॉल्व फोर्स, और जो उसके कंपोनेंट निकल कर आते हैं उनको या तो हम कंपोनेंट फोर्स बोलते हैं या रिजोल्यूट फोर्सेस बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपनी रिजल्टेंट फोर्स को तोड़ा दो हिस्सों में F1 और F2 में, तो यहाँ पर इस तोड़ने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स, और जहाँ पर हमने ये R को ब्रेक किया इसको हम बोलेंगे रिजॉल्व फोर्स। क्या बोलेंगे? रिजॉल्व फोर्स। और जो इसके दो हिस्सों में टूटे हैं F1 और F2, इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट और रिजोल्यूट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये सिंपल करने के लिए बताया, बेसिकली आपके जो फोर्सेस को दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ा जो जाता है वो एक आपका हॉरिजॉन्टल तोड़ा जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के अंदर इसको निकाला जाता है, और एक निकाला जाता है इसका वर्टिकल में। ओके, जैसा कि हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स P जो है हम इसको दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ना जा रहे हैं, यानी कि इसको तोड़ने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। और यहाँ पे हम किसको रिजोल्यूट कर रहे हैं? P को। यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट निकल कर आ रहे हैं, एक कंपोनेंट आपका ये होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा आपका वर्टिकल। ये आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कहलाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। horizontal component and the vertical component, जिसका हमने डिनोट किया है Px एंड Py से। अगर हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हमारा Px जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द P cos थीटा, एंड फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट इट विल बी द P sin थीटा। एज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर हमने अल्फ़ा का इस्तेमाल करा है तो cos अल्फ़ा एंड sin अल्फ़ा निकालने का सेम तरीका है भाई। आपका कुछ ये इस तरीके से है, ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल आप निकालने वाले हो यानी कि Px निकालने वाले हो, इसमें हमें दिया क्या क्या है, ये दिया हुआ है और इसका एक ये दिया हुआ है कंपोनेंट। तो वहीं पर तो इसको जो हम कंपोनेंट के अंदर तोड़ेंगे तो वो आपका एक Px यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द cos अल्फा, whereas the when we broke down the P, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द साइन अल्फा और द